Good morning, children. Today we are going to study about the chapter cocoa cultivation in Ghana. It is a case study. You know what is a case study? It is a broad description of either it is of a thing, it can be relating to the disease also, anything. So it is a case study of Ghana, which is famous for the cocoa cultivation. It provides 75% of the cocoa to the world. First of all, what are the conditions? Because if there is favorable condition in Ghana, then only they have been able to grow cocoa there. So what is a cocoa? Cocoa actually it is a bean. It is a bean which means it is grown in a tropical and equatorial forest region. The history of cocoa beans is एक्चुअली इट वॉज अ नेटिव ऑफ द अमेरिकन्स. ये नेटिव था अमेरिकन्स का. ये अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो एंडस माउंटेन है जिसकी की रेंज है फ्रॉम द अमेजन रिवर टू ओरिनोको रिवर तक, तो यहाँ पे ये सबसे पहले इट वॉज ग्रोन देयर ओनली. फिर क्या हुआ, इट फ्रॉम द यूरोपियंस व्हेन दे डिस्कवर्ड अमेरिका एंड दे केम देयर, फिर वहाँ से जब दे केम तो दे टुक when they settled there and when they went back to the Europe, तो यहाँ पे जब आए तो वहाँ पे उन्होंने ये चॉकलेट ड्रिंक पी and it was very energetic and good also. So they took the cocoa beans to Europe. यूरोप पहुँचा. यूरोप से फिर ये किस तरह से खाना पहुँचा? The reason is when ये स्पेनिश जो थे they took it from America to Europe and when it went to Europe में इसका cultivation start हुआ. After that the Europeans they started, when industrialization took place in Europe, they started colonization. In colonization, while doing the colonization, when the Dutch they made Ghana as their colony, they brought the cocoa drink there and when they planted it, they got a good result there. वहाँ पे उनको बहुत ही अच्छा result मिला. Actually, Ghana it is a tropical and equatorial forest area. So because of the climate condition, because cocoa needs a dry and wet climate and tropical type of climate and forested area, so it was all the conditions were suitable and heavy rainfall also it needs. So all the conditions they suited in Ghana. So the people they started cultivating cocoa in Ghana. In Ghana there is a triangle made by three main cities, that is the Accra, Kumasi and Takoradi. This Takoradi it is the main जो वर्ल्ड का 75% जो है वो सिर्फ इसी कोस्ट से कोका का एक्सपोर्ट होता है. So this is the maximum production. These three areas they make a triangle and that is why it is known as a cocoa triangle. इसलिए इनको cocoa triangle बोलते हैं. Cocoa, what is the characteristics of a cocoa plant? So first of all, it is a tropical plant with 4 to 9 meters high. It bears flowers in 3 years and the plantation they are done. The plantation the plants they yield for 30 years and in the 4th year the flowers changes into the pods and the pods have soft and white liquid substance in them and they ripen in 4 months and after that they ripen means पक जाते हैं in 4 months and the color changes into purple color. And these are the things which are main features and the main climatic conditions which is more important is the dry and wet climate with rainfall of at least there should be 200 centimeters of annual rainfall should be there. इतना rainfall वहाँ पे होना चाहिए. The soil which is it should be fertile, it should be porous soil and evenly it should be spread evenly. चारों तरफ मतलब बराबर लेवल पे होना चाहिए. It can be grown in the forest because they need, इनको बहुत प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है. एक्चुअली जो पॉट्स होते हैं वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं. अगर हवा तेज चलती है तो ये जो पॉट्स होते हैं ये टूट सकते हैं. दैट इज़ वाई जो फॉरेस्ट का एरिया होता है, जो फॉरेस्ट के बड़े बड़े ट्रीज होते हैं वो एज अ कैनोपी दे वर्क फॉर देम और उसके अंडर ये जो प्लांटेशन होता है वो नीचे बनी करने से इट इज़ मच मोर मतलब सेफर प्लेस. इट इज़ अ सेफर प्लेस सो दैट द पॉट्स डोंट ग्रो देयर एंड इट्स कल्टिवेशन इज डन देयर. और इनके लिए घाना के सारे ऑल द क्लाइमेट कंडीशंस आर वेरी गुड फॉर देयर कल्टिवेशन. सो इट प्रोड्यूसेस द वर्ल्ड 75% एक्सपोर्ट होता है कोको का. सिर्फ घाना को जो 1/5 है वर्ल्ड का वो एक्सपोर्ट घाना से ही होता है. पूरा प्रोडक्शन कोको का 1/5 एंड
घाना को इससे 75% रेवेन्यू इट कम्स फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ घाना, मतलब इनकी जो इनकम होती है 75% इनकम इनको सिर्फ घाना ये कोको को एक्सपोर्ट करने से मिलती है। ये बहुत सारे पेड़ हैं जैसे कि बनाना है, मैंगो है, इन सब पेड़ों के अंदर में ये ग्रो कर सकते हैं। सो बिकॉज दे नीड प्रोटेक्शन, क्योंकि इनको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है फ्रॉम द हेवी विंड, दैट इज वाई। एंड द फर्स्ट ब्लॉसम विल टेक प्लेस इन द, पहला जो ब्लॉसम होता है वो 5th ईयर में होता है। एक्चुअली जो मेन मेच्योरिटी पीरियड होता है इनका दैट इज द 8th ईयर। 8th ईयर में ये ज़्यादा मेच्योर होते हैं और ये सबसे ज़्यादा जो यील्ड होता है इनमें से मतलब प्रोडक्शन होता है कोको का वो 12th ईयर में दे गिव द मैक्सिमम यील्ड इन द 12th ईयर। और इनका जो है एक ईयर में ये दे आर हार्वेस्टेड फॉर ट्वाइस अ ईयर, 2 बार इनमें से हम कोको पॉड्स को मतलब कोको बीन्स हमको मिल सकती है, मतलब इनकी 2 बार फसलें तैयार होती हैं एक साल में। दे गिव अ ट्वाइस, दे कैन बी हार्वेस्टेड ट्वाइस अ ईयर। और इनको एक नाइफ होती है, द नाइफ इज नोन एज मशक। इस मशक नाइफ से इनको कोको पॉड्स को काटा जाता है। इनका शेप कुकुम्बर की तरह होता है एंड दे आर कट विद द नाइफ। बहुत ही मतलब स्किल्ड लेबर्स होने चाहिए फॉर कटिंग एंड क्लियरिंग, एंड द पीपल हु डू इट देम इज नोन एज टैम्बाडोस। इन लोगों को टैम्बाडोस कहते हैं, दे आर नोन एज टैम्बाडोस। नाउ प्रोसेसिंग, ईच पॉट जो है उसमें करीब करीब 40 से 50 60 तक सीड्स होते हैं, कोको बीन्स होते हैं। फिर इन कोको पॉट्स को ओपन किया जाता है एक नाइफ की मदद से। उसके बाद उसके जो अंदर पल्प होता है उसको निकाला जाता है, पल्प को, और फिर उनको फैला दिया, मतलब पल्प जितने भी होते हैं उनका हीप बना दिया जाता है, मीन्स एक गट्ठर टाइप का बना देते हैं। फिर उसको सुखा दिया जाता है, बनाना किसी चीज़ से ढक दिया जाता है फॉर मैनी डेज, फॉर सेवरल डेज। उन सब ही जो उनके अंदर से निकला हुआ था उसको, जो भी उनका पल्प था उसको ढक दिया जाता है। कई दिनों तक ये ढका रह जाता है। जब व्हेन इट इज़ मतलब इतने दिनों तक वो ढका रह गया गर्मी से, दे गेट फर्मेंटेड, वो उठ जाता, फर्मेंट हो जाता है। फर्मेंट मीन्स उठ जाता है, यही मतलब फूल जाता है, या उसके अंदर जिसको कहते हैं ना खमीर बोलते हैं, कोई चीज़ अगर आटा वगैरह इतनी देर के लिए रख दीजिए तो यीस्ट जो है उसमें फर्मेंटेशन कर देता है। तो दैट इज द सेम प्रोसेस वो इनके साथ भी होता है। और फर्मेंटेशन जो पल्प होता है उसको फिर हम कोको मतलब एक लिक्विफाइड करते हैं, लिक्विफाइड देयर एंड द फर्मेंटेड पल्प जो है वो ट्रिकल्स और कोको सीड जो है वो बाहर रह जाती है। ये फर्मेंटेशन से कोको सीड्स रह जाती हैं और वो बाकी जो होता है वो निकाल देते हैं। इसके बाद बीन्स को सन में मतलब फिर सुखाया जाता है। आफ्टर दैट इनके जो बीन्स होते हैं उनको सुखा दिया जाता है और उसके बाद फिर उनकी ग्रेडेशन होता है। ग्रेडेशन मीन्स जो सबसे अच्छा है मतलब क्वालिटी वाइज इनका ग्रेडेशन किया जाता है एंड आफ्टर दैट दे आर पैक्ड। उसके बाद उनको पैक कर दिया जाता है। ये बैग एक्सपोर्ट ऑफ कोको, कोको का एक्सपोर्ट जो है तो वो घाना से घाना का मेन आइटम ही है, इट इज द मेन आइटम ऑफ एक्सपोर्ट। लेकिन अब धीरे धीरे क्योंकि ये जो पेड़ हैं इनकी क्वालिटी अब ख़राब हो गई है, इनमें से इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो इसीलिए अब इनका जो प्रोडक्शन है वो कम हो चुका है। दैट इज़ वाई इन्होंने बोर्ड घाना जो है, घाना की गवर्नमेंट ने एक बोर्ड बनाया हुआ है जो कंट्रोल बोर्ड है। सो दैट इनका काम क्या है कि इनमें जो कीड़े लग गए हैं, पेस्ट लग गए हैं, इंसेक्टिसाइड्स लग गए हैं, उन सबको मतलब इंसेक्ट्स लग गए हैं, वीड्स या जो भी पेस्ट लगे हैं उनको रोकना, इनकी ग्रोथ पे ध्यान देना, इनके अच्छी से मतलब आफ्टर इनकी पैकिंग होना, इनके अच्छी हाइब्रिड सीड्स पे ध्यान देना। तो इन सब चीज़ों के लिए बोर्ड बनाया गया है ताकि ये जो घाना का ये कम होता जो इन्फ्लुएंस है कोको का वो फिर से दोबारा हो सके। I hope that all of you have understood this much. Okay students, if you have any problem you can just ask me or text me. Thank you.